Assalamu alaikum dear aspirants, you welcome to my mentor YouTube channel. I hope you are all fine. I hope your studies must be going good. I had certain queries from young aspirants who are currently doing their graduation in different colleges, and even some who are preparing for NEET examination. Sir, if we have a dream of becoming an IAS officer, dream of becoming a KS officer, how shall we do our graduation, balance our studies along with UPSC preparation, KS preparation during our graduation, because everybody is not able to qualify NEET examination. There are many meritorious candidates who don't qualify NEET, but ultimately they do qualify KS examination or IAS examination. First thing and very important thing is that if you want to be an officer, so you have to chase this dream at a very younger age. If you do it late, there will be many others who have started it after 12th class. So I believe after 12th class, that's the best stage for preparing, best stage to prepare for competitive exams like IAS, JKS. So during your graduation, you need to do one important thing. You have to do honors in any particular subject or whichever field you are doing your graduation. Do cover your important syllabus that is part of your graduation, but along with that you should try to cover your NCERT books during your graduation. So you need to get a set of NCERT books. In your free time, study Indian history, study ancient history, medieval history. You need to know about Indian geography, basics of Indian geography, class 6 textbook, class 7 textbook, class 8 textbook of geography. You need to cover a little bit of economy, 11th class economy, Indian economic development. You need to cover macroeconomics, knowledge of macroeconomics. तो ये चीज़ें सब आपको ग्रेजुएशन में कवर करनी है, स्पेशली एनसीईआरटी बुक्स. जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, उतना ज़्यादा आपका विजन बढ़ जाएगा. आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें पढ़नी होती है, बिकॉज एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेकेएस हो, आईएएस हो. सो एनसीईआरटीज आपको अच्छे से पढ़नी है. अब बच्चा कोई पढ़ता है खुद ही एनसीईआरटी, उसको लगता है मैं समझा एनसीईआरटीज को. नो, along with NCERTs you need to look papers as well. UPSC JKS papers, जिस papers मैं देखूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ. I read about Indian rivers, let me see any question that has been asked on Indian rivers. तो इंसान को पता चलता है कि अच्छा इस डायरेक्शन में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको और मेहनत करने की ज़रूरत होती है. At times you will need guidance of your mentors, so you can watch videos are free of cost right now, but we need to take advantage of them. You can watch videos on Unacademy, you can watch videos of physics वाला, study IQ, enough वीडियोज़ आर अवेलेबल. बस आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है. तो जब इंसान वो वीडियोज़ देखता है एट ए वेरी यंगर एज, तो दैट्स द वेरी फर्टाइल टाइम ऑफ वंस प्रिपरेशन. यू आर वेरी फ्री, यू आर कंप्लीटली फ्री, यू आर एंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन ईयर्स, अलॉन्ग विद दैट यू आर स्टडिंग एज वेल. तो वो बैठ जाते हैं वो कंसेप्ट आपके दिमाग में. अच्छा ये है map of India, you have physical, you have map of the world, these are the very important straits of the world, these are the important islands in the world. तो वो सब चीज़ें एक बार दिमाग में बैठ गई ना, कल को बहुत आसानी हो जाती है इंसान को आफ्टर द ग्रेजुएशन. जब आप कोचिंग लेंगे फॉर आईएएस एग्जाम, फॉर जेकेएस एग्जाम, तब आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा. And very other important thing is that we have a CSAT paper in JKS examination, IAS exam, जो पहला पेपर रहता है prelims में. So you need to work on your basic maths as well, reasoning as well. तो उस पर भी आपको वीडियोस देखने चाहिए during your graduation. मैं थोड़ा अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि बाद में ग्रेजुएशन के बाद इंसान को लगता है कि यार अब तो टाइम ही नहीं है मेरे पास उतना कि मैं बेसिक मैथ्स पे अब वर्क करूँ. बेटर इज डू इट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन. थोड़ा परसेंटेज के वीडियोस देखूँ, इवन इफ इट टेक्स यू 1 month, इवन इफ इट टेक्स यू 2 months, इट्स वर्थ. बिकॉज वो बेसिक मैथ्स पे जब ग्रिप आती है ना इंसान को, वो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा. परसेंटेज के अच्छे से वीडियोज़ देखूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ परसेंटेज के, एवरेज पे वीडियोज़ देखो, एज प्रॉब्लम्स पे वीडियो देखूँ, प्रॉफिट लॉस पे, इंटरेस्ट पे. तो जो भी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, बेसिक मैथ्स के, उन पर मैं थोड़ा वर्क करूँ. कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन हमने मेहनत नहीं की होती है, हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है. तो वो हमें ग्रेजुएशन में करना चाहिए. एक सेपरेट कॉपी बनाऊँ, किसी अच्छे टीचर्स के वीडियो देखूँ. तो डू कंसल्ट यूर सीनियर, जिसने केस दिया होगा, जिसने मेंस लिखा होगा, जिसने इंटरव्यू दिया होगा, या जिसने क्वालिफाई किया होगा, वो आपको बोलेंगे इस टीचर के वीडियो देखो, ये चीज़ें आप करो, ये वाली बुक अग्रवाल की आपको लानी है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें. तो जब आपको स्ट्रेंथ होती है ना किसी एक एरिया में, वो आपको आगे बहुत हेल्प करता है. क्योंकि बाकी लोग तब मैथ्स पे वर्क कर रहे होते हैं, आप किसी और चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं. आपका मैथ्स पहले यार ये तो मैंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, इसमें मुझे टेंशन नहीं है, आई विल गिव 10 days और हो जाएगा, और हो भी जाता है. जो हमारे NITians होते हैं, IITians होते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं होता है मैथ्स का, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन टू मच टाइम
आफ्टर ड्यूरिंग देयर 12th क्लास, आफ्टर देयर 12th क्लास, ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन, तो मैथ्स का वो फोबिया पहले ही ख़त्म किया होता है उन्होंने, तो फिर वो सीसैट को ईजिली क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स में। ऐसे ही आपको रीजनिंग पे वर्क करना है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। ट्राई टू वर्क ऑन योर रीजनिंग, सी लेटर्स, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल, एज प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, टेबल के अराउंड 5 बच्चे बैठे हैं, वाटर इमेज, वो जो कुछ भी रीजनिंग में आता है ना, वर्क ऑन दैम ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, वॉच रीजनिंग वीडियोस ऑफ यूपीएससी, जेकेएस एग्जामिनेशन। तो जितना आप पहले से स्टार्ट करेंगे ना इन चीज़ों पे वर्क करना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है आगे। तो ज़रूरी है इंसान को एक मैप बनाना, एक प्लान बनाना, यार ग्रेजुएशन में मुझे एनसीईआरटीज़ कवर करनी है, ग्रेजुएशन में मुझे अपने बेसिक मैथ्स पे वर्क करना है, ग्रेजुएशन में मुझे अपने रीजनिंग पे वर्क करना है, आई हैव टू वर्क ऑन माई इंग्लिश एज वेल। किसी का इंग्लिश कभी कभार वीक होता है, ज़्यादा मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ी है, इंग्लिश बोल नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, इस पर ग्रेजुएशन में वर्क करना है। You need to read newspapers, you need to read good columns, good articles from Indian Express, The Hindu, Greater Kashmir, any important magazine. Try to go through that. Watch good videos of good teachers who teach in English. तो धीरे धीरे इंसान का इम्प्रूव हो जाता है। अब कभी कभार फ्री टाइम मिला, कोई नावल पढ़ेंगे, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो वोकैब डेवलप हो जाएगा। कल को आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे, आपको समझ आएगा। कोई भी पैसेज होगा, डिफिकल्ट पैसेज होगा, आपने बहुत न्यूज़पेपर पढ़े हैं, तो धीरे धीरे वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है, तो आप समझ पाओगे उन पैसेज को। बिकॉज 50% ऑफ योर सीसैट पेपर वी हैव इंग्लिश कंप्रहेंशन दियर। आपको पैसेज आएंगे अराउंड 35 मार्क्स, कभी कभार 40 मार्क्स आते हैं इंग्लिश से ही। तो इंग्लिश पे भी आपको वर्क करना है। यू हैव टू क्वालिफाई वन इंग्लिश पेपर दियर, यूपीएससी एग्जामिनेशन, जेकेएस एग्जामिनेशन, एक इंग्लिश पेपर आपको क्वालिफाई करना है। यू नीड टू हैव लिटिल बिट नॉलेज ऑफ ग्रामर एज वेल, मॉडल्स क्या है, कंजक्शंस क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, क्या रूल्स है, नरेशन में, इन पे ग्रेजुएशन में मुझे वर्क करना है। क्योंकि ये वो चीज़ें होती है जो बाकी लोगों ने 9th में, 10th में, 8th 7th में बड़े स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनको टीचर्स ने पढ़ाया होता है, तो आधे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में स्किप हो जाता है। तो एक बार स्किप हुआ ना, आपने इस पर वर्क नहीं किया, आफ्टर योर ग्रेजुएशन यही एक प्रॉब्लम बन जाता है फिर क्वालिफाई करने में। आपका इंग्लिश पेपर ही क्वालिफाई नहीं होगा, आपका सीसेट पेपर ही क्वालिफाई नहीं होगा। तो बेहतर है कि इस पर पहले मुझे वर्क करना है, क्योंकि आपका वीक है, बाकियों ने स्ट्रॉन्ग किया है, उनको टीचर्स ने पढ़ाया है। कोई बिस्को से आया है, कोई डीपीएस का स्टूडेंट है, कोई इकबाल मेमोरियल का स्टूडेंट है, कोई किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट होगा, उसको ये चीज़ें कवर पहले ही he has already covered these things, तो you need to work on them as well। फिर जब इंशाल्लाह आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट यू कैन गो फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन फॉर जेकेएस एग्जामिनेशन। तो फिर इंसान को आसान लगता है, विद इन 1 year, विद इन 2 year, you will become a case officer, you can qualify your IAS examination at a very young age, but you have to be alert during your graduation। ग्रेजुएशन के साल आपको ज़ाया नहीं करने हैं। तो हम यूजुअली देखते हैं people are wasting their time in college, vlogging, YouTube, excursion, true, but these are very important। I won't say कि don't go excursion, but along with that your purpose is your parents are sending you to the college for study, so you have to be very alert। You have to be very alert। आप zoology पढ़ रहे हो, तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई और सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रहे हो, हिस्ट्री में ऑनर्स कर रहे हो, एंड स्टडी डीपली, बिकॉज टुमारो यू विल यूज दैट हिस्ट्री एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू कैन यूज योर इकोनॉमिक्स एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो उसमें कोई वीकनेस नहीं रहनी चाहिए कॉलेज में। जितना ज़्यादा स्ट्रांग आपका ऑनर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये कल को आपको ऑप्शनल में 500 मार्क्स मिलेंगे। तो कल भी आपको वो मेहनत भी करनी है। तो केएस एग्जाम ऐसा है, जेकेएस एग्जाम, आईएएस एग्जाम को आपको मेहनत करनी है। बाकी लोगों ने पढ़ा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई ऑनर्स करके आया है, ही विल गेट मार्क्स, ही विल बी आउट ऑफ द रेस एट दैट टाइम। सो यू हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड एट ए वेरी यंग एज। तो अर्लियर यू विल स्टार्ट इट, बेटर इट वुड बी फॉर यू। जितना अच्छे से आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स, उतना आपको फायदा आएगा आगे ड्यूरिंग दीज एग्जामिनेशन। नॉट ओनली केएस, नॉट ओनली आईएएस, देयर आर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। आरबीआई के एग्जाम्स होते हैं, या बाकी एसआई एग्जाम है, नायब तहसीलदार का एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं। जो बच्चा पहले से स्टार्ट करता है उसको बहुत फ़ायदा आता है। एंड यू हैव टू वर्क अंडर एनी मेंटर्स, मेंटरशिप एज वेल। कोई गाइड होगा अपने लोकलिटी में जिसने केएस का पढ़ा होगा, उसके साथ बैठो, उसको देखो वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या बोल रहा है। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात वो बोलेगा, यार ये चीज़ें पढ़ना, इस चीज़ पे आजकल चल रहा है, तो आपके दिमाग में बैठेंगे, अच्छा ये इशू चल रहा है, इसराइल फ़लस्तीन इशू चल रहा है, तो ये इट विल स्टक इन योर माइंड, कुछ है दुनिया में, कुछ हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। यू आर इन 12th क्लास बट यू आर सीइंग पीपल आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लाइमेट चेंज अभी इफेक्टिंग होल वर्ल्ड, ग्लोबल वार्मिंग, सो दीज थिंग्स यू शुड डिस्कस देम विद योर सीनियर। सर क्या है इसके पॉजिटिव्स, क्या है नेगेटिव्स, क्या है, तो ये चीज़ें आती है। सोसाइटी में क्या चैलेंज सभी चल रहे हैं, तो इन चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। वॉच गुड न्यूज़ एज वेल। अच्छा न्यूज़ आ रहा है टेलीविज़न पे या आपके मोबाइल फ़ोन से आप देख सकते हैं।
इंपॉर्टेंट डिबेट्स, कोई इशू है चल रहा है, फॉर इंस्टेंस अभी वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल, इस पे बहुत डिबेट्स चल रहा है, पार्लियामेंट में रिसेंटली पास हुआ, तो एक अच्छा स्टूडेंट देखिएगा कि क्या व्हाट वाज वक़्फ़ अर्लियर, व्हाट विल बी वक़्फ़ नाउ, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच हैव बीन ब्रॉट इनटू इट, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर asked in your interview, these are things which develop your personality. You are discussing what was in article 370, what's after article 370, what is article 35A. तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आपको पता होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है. एट ए वेरी यंगर एज यू शुड लर्न these things because the qualifiers have already read these things during their graduation. उनको ये चीज़ें पता होती है, बाकी को ये पता नहीं होता है, हमें पता चलता है कोचिंग के दौरान. तो कोचिंग में फिर बहुत लोड होता है, बहुत कवर करना होता है. तो मेरी मैसेज यही है कि जो भी एस्पिरेंट होगा, जो फ्रेशर होगा, चाहे जिसको शौक होगा चाहिए कि इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, फ्रॉम ए वेरी यंग एज यू शुड स्टार्ट इट. In case you want to take any sort of help from Ishfaq sir, I'm mentoring IAS aspirants, I'm teaching Indian economy to UPSC aspirants. We have set up Shaheen Library at Kunza, Tangmarg. If you are from this area, you can come anytime to Shaheen Library. You can join students here who are preparing for SI exam, IAS exam, JKS exam, NEET examination here. You can directly talk to Ishfaq sir. You can take any sort of guidance, how to approach NCRTs, how to select your optional subject, how to do your mains preparation. So whatever experience I have, whatever knowledge I have, I will love to share that with students. And in case you are from any other district as well, you can contact me, you can comment. I will try to help you online as well. We can meet offline whenever you want, provided I will be free at that time. तो आपको मिलेंगे, गाइड मिलता है, बस इंसान को शौक होना चाहिए. The way it is set in Alchemist is a very important novel by Paulo Coelho. When you really want to achieve something in your life, the whole universe conspires in your favor to let you achieve that. बस इंसान को शौक होना चाहिए कुछ करने का ज़िंदगी में. सारी कायनात जो है, सारी दुनिया जो है आपके लिए है, उधर आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली, और कोई ना कोई टीचर मिलेगा, कोई ना कोई सीनियर मिलेगा जो आपको बुक देगा, ऐसा करना है, वैसा करना है. प्रोवाइडेड यू टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम आपको उठाना है. तो पहला कदम एक स्टूडेंट को उठाना होता है कि मुझे करना है. एंड यू नीड अ गुड इन्वायरमेंट एज वेल. अगर आपका नियर बाय कोई लाइब्रेरी है, स्टडी हॉल है, जहाँ पढ़ सकते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट में, डू टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स. ज़रूरी नहीं आपको श्रीनगर जाना है, सोपोर में वहाँ पे पढ़ सकते हैं. अनंतनाग से है कोई, बारामूला से है कोई, पुलवामा से है कोई, कोलगाम से है कोई. सो इन एवरी कॉर्नर ऑफ आवर स्टेट यूटी राइट नाउ वी हैव लाइब्रेरीज. टंगमर्ग एरिया से है कोई, यू कैन कम शाहीन लाइब्रेरी एवन. So take advantage of these things. Do study well. My best wishes are to all of you. May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.